Okay, this is Salim Khan, and since in my previous video we had solved the question number 4 from the R.D. Sharma famous mathematics book for class 10. Okay, chapter number 4, real numbers, exercise 1.1, question number 4 we had solved, but we didn't solve any more question 5, 6 and those. So question number 5 and the question number 6 today we'll solve together. So first of all, this is our question number 5. Then question number 5 is just asking to us that prove that if a positive integer of the form 6q plus 5, then it is of the form 3q plus 2 for some integer q but not conversely. तो पहले तो we need to understand about whether what is the question saying. तो question हमारा बस यही बोल रहा है कि suppose करो कोई भी positive integer है और अगर वो positive integer 6q plus 5 के form का है then it is must, okay, ये ज़रूरी है, it is strictly, okay, must that वो 3q plus 2 की भी form का होगा. लेकिन अगर okay, for some integer q, okay, suppose an integer q, this is an integer q, उसके बाद ये बोल रहा है कि लेकिन अगर 3q plus 2 के फॉर्म का ऑलरेडी है then it is not important कि वो 6q plus 5 के फॉर्म का भी होगा. Okay, it is not possible. तो we have to just prove it. So first of all, since we have to begin from here, तो पहले तो हम लोग suppose कर लेंगे कोई भी positive integer. तो suppose करो n किस फॉर्म का है, that is of 6q plus 5. ओके, तो n 6q plus 5 के फॉर्म का है. दिस इज द गिवन वैल्यू. तो ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी दैट n इक्वल्स टू 6q plus 5. यहाँ पे सपोज आई एम राइटिंग कि q सिंस इट इज फॉर सम इंटीजर q, तो q की वैल्यू क्या हो सकती है? q की वैल्यू तो 3k हो सकती है, 3k plus 1 हो सकती है, 3k plus 2 हो सकती है, क्योंकि q के लिए ही, ओके, फॉर सम इंटीजर q, तो q की वैल्यू इज मस्ट, ओके, q की वैल्यू इज मस्ट फॉर अस, देन दैट कैन बी 3k plus 1, 3k plus 2. और अगर ये वैल्यूज हैं तो अगर मैं q की जगह पे यहाँ पे फॉर i इक्वल्स टू 0 3q पुट करता हूँ, देन दिस वैल्यू विल बी 6 into 3k plus 5, ये आएगा 6 into 3k plus 5. ओके, तो अगर इसको इवैल्यूएट करेंगे तो 18k plus 5. ओके, और अगर मैं चाहूँ तो 5 को 3 plus 2 भी लिख सकता हूँ. आई कैन राइट टू 5 as 3 plus 2. तो अगर इट इज पॉसिबल तो आई विल बी गोइंग टू राइट अबाउट 5 एज द 3 plus 2. और अगर मैं ऐसा करता हूँ सो आई कैन नोटिस हियर कि 18 के और 3 में कुछ तो कॉमन है. ओके, देयर इज ऑब्वियसली समथिंग कॉमन इन दिस. 3 कॉमन है, तो 3 इफ आई एम राइटिंग आउटसाइड द ब्रैकेट तो 3 अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 3 into 6 is 18, तो 3 into 6k plus 1 ये होगा. उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 एज इट इज, ये वैल्यू आएगी. और अगर सपोज कि 6k plus 1 की वैल्यू m है, then this will happen 6m plus 2, इतना हुआ. and 6m plus 2 since, okay, actually sorry, here is a mistake minor, that is 3m plus 2. okay, अगर this 6k plus 1 equals to m, तब हम लोग इस पूरे को और we can also write 6q plus 5 को हम लोग 3m plus 2 भी लिख सकते हैं for any kind of integer m. so if we see that here m is some kind of integer, positive integer, और यहाँ पे q भी is some kind of positive integer. तो अगर हम लोग चाहें तो we can also write if this is of the form of 3m plus 2, then this is also of the form of 3q plus 2 for r equals to 0. ऐसे if we are trying to solve for r equals to 1, suppose we are trying to solve for the r equals to 1, so n equals to again 6q plus 5. r equals to 1 के लिए solve करते हैं here for this case, then this is 6 into what, 3k plus 1, 6 into 3k plus 1. उसके बाद क्या आएगा, आफ्टर दैट अगेन एज वी नो आफ्टर दैट प्लस 5, तो इसको अगेन इवैल्यूएट कर सकते हैं, देन दैट इज 18k plus 6, 18k plus 6 आएगा. तो अगेन 5 को 3 plus 2 लिख सकते हैं, श्योरली वी कैन डू. तो यहाँ पे अगर कॉमन लेने की कोशिश करें देन दैट विल बी इन, सपोज इन तीनों में से कॉमन लेते हैं, सो 3 आई टेक हियर, व्हाट विल बी लेफ्ट, 6k plus 2 plus 1, ये वैल्यू आएगी. ओके, उसके बाद यहाँ पे प्लस 2 एज इट इज. ओके, 2 plus 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 into 6k plus 3, उसके बाद होल प्लस 2, ये वैल्यू आएगी. सपोज 6k plus 3m है, देन अगेन
3m + 2। सो ये अगेन इसी फॉर्म का आ रहा है ऑफ द फॉर्म 3q + 2। तो यहाँ से हम लोग को अगर r = 2 के लिए भी सपोज करते हैं, सपोज आई एम राइटिंग फॉर r = 2, तब क्या आएगी, अगेन n की वैल्यू तो सेम रिमेन होगी, n वैल्यू इज फॉरएवर सेम, लेकिन q की वैल्यू क्या होगी, q की वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है ऑलरेडी, दैट इज 3k + 2। इसमें पुट करेंगे, सो 6 × 3k + 2 ये आएगी। उसके बाद इसी में 5 ऐड कर सकते हैं, एंड इफ़ वी आर एडिंग 5 तो फाइनल यहाँ से आंसर क्या निकलता है, 6 × 3k, तो यहाँ से तो 18 क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एडिशन का सिंबल है, 6 × 12, ओके 2 इज ऑब्वियसली 12, प्लस यहाँ से 5, चाहे तो इफ वी विश सो वी कैन राइट 5 अगेन एज व्हाट, इफ वी वांट वी कैन राइट एज 3 + 2, और अगर ये करते हैं अगेन वी कैन फाइंड कॉमन एज 3, देन हियर विल हैपन 6k + 2 + 1 और ये +2, ये वैल्यू आएगी। इसके बाद प्लस, ओके इफ वी वांट वी कैन राइट इट अगेन एज 3 × 6k + 3 अगेन +2, सिंस इसको हम लोग m सपोज कर सकते हैं, देन दैट इज 6m + 2, ओके अगेन 3m, सॉरी, सो 3m + 2, तो वही वैल्यू आ रही है, मीन्स वी आर गेटिंग ऑफ द सेम फॉर्म। तब सपोज एनी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास n है, तो अगर वो 6q + 5 के फॉर्म का है, देन इट इज मस्ट दैट इट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q + 2। लेकिन सपोज कि अगर वी हैव टू ट्राई इट कन्वर्सली, यानी अगर 3q + 2 के फॉर्म का है, तब क्या वो 6q + 5 के फॉर्म का होगा। बिफोर दैट लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज दिस। ओके तो सपोज n की वैल्यू इस बार ये नहीं है, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ n फॉर द टाइम, n की वैल्यू इस बार कुछ अलग हो जाती है। हमसे क्वेश्चन बोलता है सपोज कि n की वैल्यू इस बार 3q + 2 इटसेल्फ, ओके खुद में ही 3q + 2 हो जाती है, तब q की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये तो एक्चुअली q की वैल्यू तो इस बार क्या होगी, दैट विल जस्ट लाइक चेंज लिटिल, दैट विल चेंज, एंड q वैल्यू फॉर दिस टाइम विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल 6k + 0 लिख सकती है, या फिर दैट्स इन इटसेल्फ 6k। उसके बाद 6k + 1 लिख सकते हैं, 6k + 2 लिख सकते हैं, 6k + 3 लिख सकते हैं, 6k + 4 एंड 6k + 5 इसको एक्सीड नहीं करेगी, बिकॉज ऑलरेडी b इन इट सेल्फ इज व्हाट इज 6। तो अभी को हमें 1 by 1 वैल्यूज पुट करनी है, आफ्टर दैट विल चेक आवर फाइनल आंसर। सो दिस 3 × what, 3 × पहले तो q की वैल्यू 6k है, सो 3 × 6k + 2 ये वैल्यू आ रही है, तो 3 × 6k + 2 18k + 2 आ रहा है, 18k + 2। अगर इसमें से कुछ कॉमन भी लेते हैं, सपोज 18k को मैं लिखता हूँ 6 × 3k, 6 × 3k + 2, ओके ये वैल्यू। तो उसके बाद अगर ये वैल्यूट करता हूँ, इसको 6m + 2 के फॉर्म में लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 6m + 2 नॉट इन द फॉर्म ऑफ 6q + 5। तो r = 0 रखते ही वॉट वी आर गेटिंग दैट कन्वर्सली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर हम लोग चाहते हैं r = 1 पे ट्राई कर सकते हैं, एट दी 2 3 4 ओके एंड 5, तो r = 0 1 2 3 4 5 पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 0 पे ही तो आंसर निकल के आ रहा है, दैट नो कन्वर्सली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये किस फॉर्म का है 6m + 2, वाइल ये किस फॉर्म का है 6q + 5। ओके सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, देयर इज 5 इन द रिमाइंडर, हियर इज 2 इन द रिमाइंडर। तो इफ यू वांट वी कैन आल्सो ट्राई, बट एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। सो सिंस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6 my sister will be solving. So she will be solving the question number 6. Okay, so now Sarim has solved his question. Now it's mine time, and he said, Appi, now you can try. So now I am going to solve this question. Okay, so what is our question? Prove that a square of any positive integer is of the form 5q + 1 is of the same form.
दैट मीन्स हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, 5q + 1, इसी को हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, n, a, b, c, d, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लूँगी, n लूँगी। Why I'll take n? Because n belongs to natural number. Okay, so I can write let n be any positive integer for what we have, 5q + 1. Okay, 5q + 1. What we have to do, we have to square both side. ओके, वी हैव टू, हम लोग को दोनों साइड स्क्वायर करना है, n को भी स्क्वायर करना है, 5q + 1 को भी स्क्वायर करना है, तब हम लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या इसी फॉर्म में आ रहा है, तो वही हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड we get, okay, so finally from here our main solution is getting started. Okay, so n here we'll write as it is, but square both side, we have to square as I wrote here. Now 5q + 1 whole square. Okay, नाउ वी कैन एज्यूम, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये किसके फॉर्म में दिया गया। अगर हम लोगों ने अपना 9th 10th अच्छे से पढ़ा है या फिर 8th भी अच्छे से पढ़ा है, तो उसमें हम लोग क्या जनरलाइज किए थे कि वहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मूला दिया होता था a + b का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों सेम कुछ मैच कर रहा है, एग्जैक्टली ये दोनों सेम है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते थे, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab and b square. Exactly, so same thing will follow here. What will our 5q is a, हमारा यहाँ पे 5q क्या है, a है, तो हम क्या लिखेंगे, 5q², ठीक है। 2ab, यहाँ पे 2 एज इन फॉर्मूला 2 × 2ab का मतलब 2 × a × b, ठीक है। 2 × 5q × 1. Okay, now plus as it is in formula, now b². What we have over b, that is 1. Okay, तो 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हम लोग को आंसर मिलेगा। So n² = 5q का स्क्वायर, 5 × 5 25 और q² along with this, plus 5 × 2 10, 10 × 1 10, and this q will be along with this, so 10q + 1 as it is. अभी यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, 25q² + 10q + 1। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन अप टू 5th क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था, तो अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन से बहुत फेमिलियर हो चुके हैं, तो अब हम लोग इसको ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 आई विल टेक एज द कॉमन, सो 5 5 = 25 q² + 5 2 = 10 q and ब्रैकेट क्लोज +1। व्हाट आई गॉट हियर, मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला, 5m + 1। अब यहाँ पे m की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, कोई m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो वेर m = 5q² + 2q। यहाँ पे हम लोग को मिल गया ना 5m + 1, 5q + 1, q क्या, q की वैल्यू क्या है, 5q² + 2q। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हेंस n² is the form of 5q + 1, ठीक है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। नाउ लेट अस सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।